Good evening, everyone. On behalf of Raigad IP, I, Dr. Neha Singh, welcome you all for today's webinar on thalassemia awareness. We all know that World Thalassemia Day was on 8th of May, and the theme of the year is Be Aware, Share, Care, strengthening education to bridge the thalassemia care gap. Friends, in India, the tradition of matchmaking horoscope should be manifestation, impacting child development from intrauterine life. Research has given hope to detect and treatment causes that were once considered hopeless, condemned to a life between symptoms of low HB and multiple transfusions, and ultimately perish from iron overload. We need to know, detect, treat, and this malady as early as possible. For today's webinar, we have with us Dr. Mahesh Moite sir as our expert, and the eminent speaker is Dr. Vineet Khandelwal. Dr. Jay Bhandarkar sir will be the moderator of this webinar. Now, before we start, I request our Raigad IIP President, Dr. Vikas More sir, to please say a few words. Over to you, sir. Thank you so much, Dr. Neha, for this initiative. And as an IIP Raigad President, I am so proud to have such eminent speakers today. Dr. Vineet Khandelwal, very good friend of mine from Apollo Hospitals, and our own Dr. Stalwart, Dr. Moite sir, to guide us regarding thalassemia. We know that thalassemia is a very burning issue for India, because I know it very closely because my PG thesis was on thalassemia. I have visited so many kids and parents of thalassemia disease. I have seen some villages full of thalassemia in Madhya Pradesh and Vidarbha. And I remember one child who used to receive 12 to 13 bottles of blood per month. So that kind of consumption she was doing, and all veins used to be fired, and there's a very hard time for us to putting the vein flow for this kid. Unfortunately, the premarital counseling is lacking in India, and especially the matter becomes worse when the blood group is very rare, like the baby is having O negative blood group and the baby is suffering from thalassemia major. So life becomes hellish. The family is destroyed, the business is destroyed, the family is unstable. So I know because a very large part of India is suffering from this disease. And not only that, tribal people are suffering, only the people from Sindhi community, Punjabi community, Agri community from this coastal area are suffering from this disease. So a lot of awareness is required. And so I'm very glad that Rotary is clubbed with us for this awareness campaign. And I really congratulate our team to have such a good speakers with us. I request Neha to carry forward the session. Thank you, Vikas sir. Now I hand over to Dr. Jay sir for the interactive session. Over to you, sir. Good evening, everyone. At the outset, I am very thankful to Dr. Vipin Khandelwal, hematologist from the Apollo Hospital, and our own Dr. Mahesh Moite as the expert for today's session. It's not a webinar, friends. Already explained. 8th May was the World Thalassemia Day. Ideally, not a single child aim. Suppose ask the aim and objective. There should be not a single child should be born with thalassemia in our country or in the society. Almost 5 crore people are in India. They are the carriers of the thalassemia trait, and 10 to 12,000 kids or newborns are born with the thalassemia disease. So at present, we have maybe 1.2 lakh kids
in the India having the thalassemia major disease. So friends, straight away I go to the question to the Vipin sir. Sir, let us, what is this thalassemia? आप मुझे बताइए ये क्या बीमारी है. तो पहले मुझे बहुत डिटेल मेडिकल नहीं चाहिए, एग्जैक्टली क्या होता है थैलेसीमिया, क्या होता है, जो कॉमनली क्या हीमोग्लोबिन, दिस इज वन ऑफ द कॉमनेस, वन ऑफ द कैपिटल ऑफ द हीमोग्लोबिनोपैथीज इन द वर्ल्ड, कहते हैं कि ये इंडिया में है, हमारे भारत में है. तो ये थैलेसीमिया सर क्या चीज है, क्या बीमारी है, एक सिंपल लैंग्वेज में बताइए. Yes, sir. First of all, I will say thank you to IIP Raigad for creating this a common platform for the families and for the doctors also to create awareness about thalassemia. So हम बिल्कुल सीधी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि फैमिलीज भी है. So थैलेसीमिया एक रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर है. यदि हम देखें हमारे बोन मैरो से हमारे 3 तरह के सेल्स निकलते हैं. व्हाइट ब्लड सेल जो कि इन्फेक्शन से लड़ने के काम में आते हैं, प्लेटलेट्स जो कि ब्लीडिंग रोकने के काम में आते हैं, रेड ब्लड सेल जिसमें कि हीमोग्लोबिन होता है एंड दैट कैरीज ऑक्सीजन एवरीवेयर टू आवर बॉडी. थैलेसीमिया रेड ब्लड सेल का डिसऑर्डर है. इसमें इम्यूनिटी कोई इफेक्ट नहीं होती, लेकिन हाँ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इफेक्ट होती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है. और डिपेंडिंग अपॉन हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, अल्फा प्रोटीन्स, बीटा प्रोटीन्स. जो डिफेक्टिव प्रोटीन होता है उसका हम थैलेसीमिया का लेबल कर देते हैं. जैसे कि बीटा प्रोटीन डिफेक्टिव है तो उसको बीटा थैलेसीमिया बोल देते हैं, अल्फा प्रोटीन डिफेक्टिव है तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोल देते हैं. हमारे इंडिया में कॉमनली बीटा थैलेसीमिया काफी कॉमनली देखा जाता है. तो यही थैलेसीमिया की पूरी स्टोरी है. तो इस तरह ये जेनेटिक बीमारी क्या, आनुवंशिक है का, मुझे बोले तो एक पेरेंट्स अगर है तो बच्चों में होता है. तो ये थैलेसीमिया मेजर और माइनर क्या है? तो कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज 3 टाइप्स ऑफ बोलते हैं, तो क्या 3 टाइप है थैलेसीमिया के, कौन कैरी रहता है, किस बच्चे को ये होता है, होने के चांसेस कितने रहते हैं? हाँ जी सर, यदि जैसे कि हम देखते हैं थैलेसीमिया एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो हमारे जीन्स हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं. कोई भी कैरेक्टर हमें है तो हमें जीन्स हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं जो कि डीएनए होता है. तो थैलेसीमिया भी एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें कि जो जीन्स हमें पेरेंट्स से कैरी करते हैं. तो अगर हम हीमोग्लोबिन को देखें, हीमोग्लोबिन में 2 जीन्स होते हैं, एक हमें मम्मी से मिलता है, एक फादर से मिलता है. तो यदि एक जीन में डिफेक्ट है तो उसको हम बोल देते हैं बीटा थैलेसीमिया माइनर. माइनर थैलेसीमिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनका हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम रह सकता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग उनको कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती और बिल्कुल नॉर्मल होते हैं. यही सिनेरियो यदि हम देखें कि मम्मी भी माइनर थैलेसीमिया है, फादर भी माइनर थैलेसीमिया है, तो हमारे 25% चांस होते हैं कि बच्चे को कि मेजर थैलेसीमिया हो सकता है. मेजर थैलेसीमिया का मतलब कि दोनों ही जीन में डिफेक्ट. मेजर थैलेसीमिया में बच्चे को डेफिनेटली मंथली ट्रांसफ्यूजन चढ़ाते हैं, तभी वो सरवाइव कर पाते हैं. और एक इन दोनों के बीच में यदि हम देखें एक सीवियरिटी होती है जिसको हम बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया, जिनकी जो सीवियरिटी माइनर और मेजर के बीच में होती है. उनको कभी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंटली ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती. मम्मी माँ, दीपक जी जरा म्यूट करना. ओके, सो आप ये कहना चाहिए विपिन जी, अगर थैलेसीमिया मेजर होता है, बराबर है, तो बच्चे को हमको कब समझता है कि बच्चा कैसे आता है हमारे हॉस्पिटल में, कैसे समझेगा पेडिशन को, पेरेंट्स को, बच्चे को थैलेसीमिया बीमारी है, कैसे कब आता है, कौन से एज में होता है? कि वो डायरेक्ट मुझे बच्चा कोई 10 साल में आ गया तो डायरेक्ट डिटेल होता है कि व्हाट इज अर्लियर एज ऑफ प्रेजेंटेशन. तो वो क्या बीमारी कब पेरेंट कब समझे और पेडिशन कब समझे कि ये बीमारी हो सकती है? Yes sir, any child who is presenting with severe anemia at the age of 6 months, we should think of yes something is going wrong. तो तब हम उसको थैलेसीमिया सस्पेक्ट कर सकते हैं. फिर हम कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे जिससे कि हम ये चीज कंफर्म कर लेते हैं. लेकिन यहाँ पे क्रक्स यही है कि कोई भी बच्चा 6 महीने की उम्र पे सीवियर एनीमिया के साथ आता है तो
और साथ में हम उसको देखते हैं कि लीवर या स्प्लीन भी कुछ बड़ा हुआ होता है, तो वो थैलेसीमिया हो सकता है। लेकिन हमारे इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी काफी कॉमनली देखा जाता है इस उम्र में। लेकिन सीवियर एनीमिया एट द एज ऑफ 6 months, वी शुड कीप थैलेसीमिया आल्सो इन एज अ वन डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ओके, मोहिते सर, आप ये बताइए, सब सीवियर एनीमिया है, मुझे मालूम है कि थैलेसीमिया या आयरन या सम एनीथिंग, तो ये बच्चा कैसे प्रेजेंट हो सकता है कि 6 month में कुछ फीडिंग में प्रॉब्लम आएगा या बच्चा इरिटेबल रहेगा और कुछ, सो दैट पेडिशन तो समझे, ठीक है पेडिशन, लेकिन हमारे पेरेंट्स कैसे समझे कि या वेट गेन नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है उसके कि वो थैलेसीमिया कुछ एनीमिया है समझे हम बेबी को। देखो, पहले तो एज अ क्लिनिशियन हम लोग जब ये बच्चा देखते हैं तो आई विल से ज्यादा बच्चे ये हम लोग पिकअप करते हैं, बल्कि कि पेरेंट्स लेके आए ये सिम्टम्स है। तो ये बच्चा आता है कोल्ड कफ फीवर या कुछ के लिए या मे बी वैक्सीनेशन के लिए, और हम क्लिनिकली देखते हैं कि बच्चा पेन लग रहा है, उसको स्प्लीन लीवर पाल्पेट हो रही है, तो वो हमारा सस्पिशन है। और ये आमतौर पे हम लोग 4 to 6 months को हम लोग पिकअप कर लेते हैं। बट साथ ही साथ में मैंने कुछ अलग अलग प्रेजेंटेशन भी देखे, जैसे आपने बताया कि बच्चा फीडिंग कम ले रहा है, विच इज वेरी रेयर, अनलेस हीमोग्लोबिन बहुत ही कम हो गया तो होता है, या बच्चा ब्रेथलेस होना। ओकेजनली हम लोग ये देखते कि पेरेंट्स ने कुछ पेट में गांठ देख लिया, या जो मसाज वाली बाई है उसने बोला इसके पेट में कुछ लग रहा है, तो उसको दिखाने के लिए वो लेके आया और वो स्प्लीन लगा, साथ ही साथ में उसका हीमोग्लोबिन पिकअप कर लिया। मेजॉरिटी टाइम्स ये पिकअप हम लोग एज ए क्लिनिशियन एक्सीडेंटल पिकअप होता है, वो आते कुछ अलग वजह से, या आते कुछ रूटीन केयर के लिए, रूटीन वैक्सीनेशन के लिए, और हमने उसको एनीमिक चेक कर लिया, उसका स्प्लीन लीवर देख लिया। अभी जैसे डॉक्टर विपिन ने बताया आपको कि कॉमन कॉज हमारे इधर आयरन डेफिशिएंसी देखते हैं, बट हमारा सस्पिशन ज्यादा बढ़ जाता है जब भी हम लोग एनीमिया के साथ लीवर और स्प्लीन पाल्पेट कर लेते हैं। अगर आयरन डेफिशिएंसी होते आमतौर पे लीवर स्प्लीन इतना सिग्निफिकेंट या शायद लाइवुलर स्प्लीन पाल्पेट ही नहीं होता है, हुआ तो भी बहुत कम रहता है, बजाय थैलेसेमिया जिसमें ये दो ऑर्गन अपफ्रंट शुरुआत में हमको अच्छे से पाल्पेट कर लेती है। सो दैट इज ऐसे ऐसे उनका प्रेजेंटेशन होता है। ये सही बात कही मोहिते सर आपने कि अराउंड 6 month, तो मैं बहुत बार कहना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन पेडिशन के पास क्यों देना चाहिए। तो वैक्सीनेशन इज नॉट गिविंग ओनली इंजेक्शन, हम बच्चे को इंजेक्शन नहीं देते, उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तब कुछ बहुत सारी चीजें पता चलती है, उसमें थैलेसीमिया एक बीमारी में से कहूंगा। तो आगे चलते हुए विपिन सर ये भी बताए, मोहिते सर आगे ये भी बताइए, सपोज कोई चाइल्ड डिटेक्ट नहीं हुआ, सपोज दैट कम्स थैलेसीमिया मेजर में कहूंगा या इंटर मेजर की बात कहूंगा, सपोज दैट कम्स अराउंड 2 years 3 years एज, उसमें क्या दिख सकता है, पेरेंट्स को क्या दिख सकता है कि बच्चा एनीमिक हो सकता है, मे बी ड्यू टू थैलेसीमिया। देखो, थैलेसीमिया मेजर, माइनर, इंटरमीडिएट, ये क्लासिफिकेशन आज की तारीख में हम लोग ऑलमोस्ट अभी भूलने जा रहे हैं। हम लोग उसको थैलेसीमिया ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट और थैलेसीमिया ट्रांसफ्यूजन नॉन डिपेंडेंट ये कैटेगरी में कर रहे हैं। तो उसमें जो थैलेसीमिया डिपेंडेंट है वो हम लोग टिपिकली पहले हम लोग मेजर कहा करते थे। आमतौर पे ये बच्चे को शुरुआत से ट्रांसफ्यूजन 6 या 9 महीने के अंदर ही लगता है, तो ये बच्चा 2 साल तक विदाउट ट्रांसफ्यूजन बचे ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो एक आधा बच्चा अगर 2 साल तक विदाउट ट्रांसफ्यूजन रहता है तो उसको पुराने जमाने में उसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं, आज की तारीख में उसको थैलेसीमिया नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट बोलते हैं। और ये जेनेटिकली सोचने जाए तो वो जीन कितने डिफेक्टिव उसके ऊपर निर्भर करता है, जिसको हम लोग होमोलोगस बोलते हैं, जिसमें 4 जीन डिफेक्टिव है, और जो हेटेरोलोगस है जिसमें 2 या 3 डिफेक्टिव, उसको हम लोग पहले इंटरमीडिएट कहा करते थे ना, आजकल हम लोग उसको नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट बोलते हैं। और एक जीन डिफेक्ट हम लोग टिपिकली कैरियर बोलते हैं, जैसे डॉक्टर ने बताया हमें कि इनको से कभी ब्लड लगता ही नहीं है। ये जो 2 साल में आप पिकअप कर रहे हो मोस्ट लाइकली नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट या पुराने जमाने का इंटरमीडिएट वैरायटी है। जो बच्चा अगेन एनीमिक रहेगा, हेपेटोस्प्लीन लीवर और स्प्लीन पाल्पेट रहेगा, और उसको कभी कभार बीच बीच में कभी किसी बच्चे को, मैंने लिटरेचर ने इस हद तक बताया कि इंटरमीडिएट वाला कभी उम्र के 12 साल में भी पहली बार पिकअप हुआ है, बट आमतौर पे दूसरे तीसरे साल में ये पिकअप होता है। ये बच्चा आमतौर पे कुछ अलग कारण के लिए प्रेजेंट होता है, फीवर के साथ लीवर स्प्लीन, तो कोई उसको मलेरिया के लिए ट्रीट कर रहा है, या कोई उसके लिए इन्वेस्टिगेट कर रहा है, या कोई टाइफाइड के लिए ट्रीट कर रहा है, सब ठीक, बुखार ठीक होने के बावजूद उसका
ब्लड वैसे ही कम होते जा रहा है, तो हम लोग वो सोच लेते हैं। कोई जनरली पीडियाट्रिशियन जल्दी इसको पिकअप कर लेते हैं और उसको उसका HTLC करा लिए तो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। तो 2 साल में आमतौर पर उतना ही रहता है, और आगे और ज्यादा जाता है कि पिकअप नहीं होता है, तो फिर उसका ग्रोथ फेल्यूर है, उसका क्रॉनिक एनीमिया है, बाकी का ग्रोथ पैरामीटर से एबनॉर्मल आ जाएगा। ये सब सिम्टम्स वो टाइम उसके दिखाई पड़ेंगे। सही कहा। तो विपिन सर, ये चीज बताइए, ये थैलेसीमिया अगर बीमारी डिटेक्ट हुई तो बहुत बार ऐसे होता है कि ये जो बीमारी है, बीमारी कहूंगा मैं, जो एनीमिया है, सपोज एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अनफॉर्चुनेटली ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट है। बच्चे को हर 2-3 हफ्ते में हमको ब्लड देना है, सो इसका हीमोग्लोबिन सही रहे, उसकी बाकी चीजें उसकी ग्रोथ बोलेंगे या डेवलपमेंट अच्छा रहे। तो मैंने देखा है कि फैमिली के लिए कितना, सोसाइटी फॉर द फैमिली फॉर नेशन इज वेरी स्ट्रेसफुल। किसी बच्चे को हर 2-3 हफ्ते में चेक करना है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लेके जाना है। तो इसका कुछ, अभी मैं बात कहूंगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ट्रीटमेंट हो गया, तो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट है, मैं कुछ गोली दे दूंगा और हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, मैं आयुर्वेदिक या कुछ अलग अदर देन एलोपैथिक ब्लड के से और मैं और कुछ ट्राई करूंगा तो ये बच्चा मेरा क्योर हो सकता है, ऐसे है क्या नहीं है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। यस सर, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि थैलेसीमिया वाले बच्चे को यदि हम रेगुलर सेफ ट्रांसफ्यूजन देते हैं, हीमोग्लोबिन 9 से ऊपर रखते हैं, सेफ ब्लड का मतलब है कि वो बिल्कुल टेस्टेड ब्लड है जो कि हेपेटाइटिस बी, HIV और HCV से नेगेटिव है, पैक्ड रेड ब्लड सेल पूरी मात्रा में देते हैं, तो बच्चे की ग्रोथ भी बिल्कुल ठीक रहती है और उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह रहती है। लेकिन हाँ, यदि हम चाहते हैं, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, रिएक्शंस हो सकती है, फिर ट्रांसफ्यूजन से आयरन ओवरलोड हो सकता है, सारी चीजें हैं। यदि हम क्योर की बात करते हैं तो क्योर डेफिनेटली थैलेसीमिया मेजर में आजकल बोन मैरो ट्रांसप्लांट से होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन हाँ, कुछ दवाइयां भी है जो कि क्योर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ट्रांसफ्यूजन फ्रीक्वेंसी कम करी जा सकती है उससे। जैसे कि थैलेसीमिया इंटरमीडिया में बोलते हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया का थोड़ा बहुत रोल है और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन 1-2 ग्राम बढ़ जाएगा और बच्चे को, हाँ, जिसका बेसलाइन 7 to 8 रहता है, 9 से ऊपर रह जाता है, तो वो बहुत अच्छी बात है, उसको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ती। और आजकल हमसे फैमिलीज पूछती है कि न्यू और क्या है, तो न्यू आजकल एक मेडिसिन भी आई है जिसको हम बोलते हैं लुस्पाटरसेप्ट। तो लेकिन वो बच्चों में अभी इंडिकेटेड नहीं है, इट इज इंडिकेटेड ओनली फॉर मोर देन 18 years ऑफ एज। उसमें ये देखा गया है कि ये वाली दवाई देने से, ये इंजेक्टेबल इंजेक्शन होता है जिसमें कि एवरी 3 वीकली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिया जाता है, उसको देने से ट्रांसफ्यूजन फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और गायब भी हो जाती है। इसका एक फिक्स प्रोटोकॉल हो जाता है जो कि फॉलो किया जाता है। तो थैलेसीमिया में ये न्यू मेडिसिन है। और रही बात बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, यस, बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही एक थैलेसीमिया के लिए अभी परमानेंट क्योर है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कोई ऑपरेशन या सर्जरी नहीं है, ये एक फिक्स प्रोटोकॉल होता है जिसमें कि पेशेंट को पहले तैयार किया जाता है ताकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट वो सही ढंग से झेल पाए और सक्सेस हमें अच्छी तरह मिले। और हमें चाहिए सबसे पहले उसके लिए डोनर। हम कुछ एक, जैसे कि ब्लड ग्रुपिंग होती है, वैसे ही हम हर किसी के बोन मैरो के ग्रुपिंग को टेस्टिंग के लिए HLA टाइपिंग एक टेस्ट होता है, उससे हम, दैट इज अ DNA टेस्ट, उससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सुइटेबल डोनर होता है। यदि भाई बहन फुल मैच डोनर होता है तो ट्रांसप्लांट के सक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यदि किसी के भाई बहन में फुल मैच नहीं हो रहा है, HLA मैच नहीं मिल पा रहा है, तो आजकल बहुत सारी रजिस्ट्रीज होती है जिनमें कि डोनर के लिए सर्चिंग की जाती है। इसको हम बोलते हैं मैच्ड अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट। यदि हमें अनरिलेटेड डोनर भी कोई नहीं मिल पाता तो तीसरा ऑप्शन आजकल, क्योंकि ट्रांसप्लांट में काफी पिछले 2 decades में इतना प्रोग्रेस हुआ है, न्यू मेडिसिन आई है, सपोर्टिव केयर इंप्रूव हुआ है, तो हाफ मैच ट्रांसप्लांट का भी रोल है। यदि कोई भाई बहन पूरा मैच नहीं है तो वो डेफिनेटली हाफ मैच होगा, प्लस पेरेंट्स तो सबके हाफ मैच होंगे ही। हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट का भी आजकल थैलेसीमिया में बहुत अच्छा रोल है और उससे भी बच्चे ठीक हो जाते हैं। विपिन सर, एक जस्ट एक इंफॉर्मेशन,
हमारा 1 मिनट 6 मिनट के बाद में बंद हो जाएगा. वी हैव टू रीजॉइन अगेन द सेम मीटिंग, थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से. सो विल कैरी फॉरवर्ड द डिस्कशन. तो सर ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है काफी पैसा खर्चा करने वाली बात है, तो बहुत सारा पैसा इसमें लगता है. तो मुझे मेरे दो पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ भी है फ्री ऑफ कॉस्ट में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है और किसी कारपोरेट हॉस्पिटल में भी हुआ है. तो इसका फंडिंग होता है, तो इसके बारे में थोड़े बताइए कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि ठीक है बच्चे को तो ट्रीटमेंट तो करना है मुझे, लेकिन अगर इतना ज्यादा पैसा मैं खर्चा नहीं कर सकता तो सपोर्ट ग्रुप रहती है क्या इसमें, कैसे रहता है? यस सर, बिल्कुल सपोर्ट ग्रुप रहता है. एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थैलेसीमिया के ट्रांसप्लांट के लिए एक स्कीम निकाली है जिसको हम बोलते हैं कोल इंडिया स्कीम. उसमें थैलेसीमिया के ट्रांसप्लांट के लिए जो भी फुल मैच डोनर है, जैसे कि भाई बहन पूरा मैच डोनर है, तो उसके लिए 10 लाख तक फंडिंग की जाती है. इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, और सोशल जो प्लेटफॉर्म्स है, इम्पैक्ट ग्रुप और भी तरह तरह के आई विल से तरीके हैं जिससे कि फंड रेस किया जा सकता है. और एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा, थैलेसीमिया मेजर का ट्रांसप्लांट इट इज नॉट एन इमरजेंसी. जैसे कि ब्लड कैंसर में एक इमरजेंसी होती है, थैलेसीमिया ट्रांसप्लांट के लिए वी कैन वेट फॉर अ ईयर 2 ईयर, और इतने टाइम में यस डेफिनेटली फंड रेस हो जाता है और हम बच्चे को क्योर कर सकते हैं. यस सर, बहुत अच्छी बात कही. मैं एक सब चीज को अपील करना चाहूंगा एज अ सीनियर पेडिशियन. फ्रेंड्स, हम सभी के सभी जगह फ्रेंड्स है, इवन पॉलिटिशियंस आर आवर फ्रेंड्स. मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप कांटेक्ट कीजिए लोकल एमएलए, एनीबडी, दे आर ऑलवेज हेल्पफुल एंड गवर्नमेंट हैड दैट ऑल फंड्स विद देम. आप सिर्फ कांटेक्ट कीजिए, आपका पूरा अरेंज हो सकता है अपने पुअर पेशेंट के लिए, किसी भी पेशेंट के लिए. तो please use your own contacts for the raising the funds. Sometimes it's very easily can be done. uh, तो विपिन सर जी, ये बताइए ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है, अभी थोड़ा बात ही चल रही है, सिर्फ थैलेसेमिया में है क्या और कुछ जैसे हमारे पास एक बच्चा है था, उसको इम्यूनो डिफिशियंसी डिटेक्ट हुआ था, कंजेनिटल स्किड बोलते हैं, तो दैट पेशेंट आल्सो गेट ट्रांसप्लांटेड एंड दैट पेशेंट इज वेरी वेल. तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कुछ अदर बीमारी पे भी की जाती है, तो थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं आप 2-3 मिनट में? श्योर सर. जैसे कि मैंने बताया कि सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो हमारे ब्लड में 3 तरीके के सेल्स होते हैं. व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए. अब जैसे कि रेड ब्लड सेल के डिसऑर्डर्स जिनमें भी की कॉमनली ट्रांसप्लांट किया जाता है, एक तो थैलेसीमिया हो गया, एक दूसरा सिकल सेल डिजीज, उसमें भी वो भी महाराष्ट्र में कॉमन है. सब में इंडिकेशन नहीं होती, लेकिन जो सीवियर फॉर्म है जिनमें इंडिकेशन होती है उससे बिल्कुल क्योर कर सकते हैं. फिर दूसरी बात होती है कि व्हाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर्स. व्हाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर्स में हमारे कई तरीके की बीमारियां होती है. सबसे कॉमनली जो हम देखते हैं दैट इज हाई रिस्क ब्लड कैंसर्स, हाई रिस्क ल्यूकीमियास जो कि आपने देखा होगा, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है और एक एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है. सब लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं होती. मैक्सिमम बच्चे कीमोथेरेपी से ठीक हो जाते हैं. लेकिन हाँ, जो रिलैप्स्ड केस होते हैं जिनमें कि कैंसर वापस आ गया, या जो इनिशियली हाई रिस्क होते हैं, उनमें ट्रांसप्लांट से बच्चों को क्योर किया जा सकता है. यहाँ पे मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि दिस इज अ थैलेसीमिया मीटिंग, बट जो बच्चे ब्लड कैंसर के होते हैं जो कि रिलैप्स्ड हो जाते हैं, उनमें भी 50% वाले बच्चों को बचाया जा सकता है बाय ट्रांसप्लांट. तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है. जो पेरेंट्स जिनके बच्चे की कैंसर वापस आ गया, ब्लड कैंसर वापस आ गया, वो होपलेस नहीं हो, उनमें भी क्योर होने की बिल्कुल संभावना होती है. व्हाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर में ही जैसे कि आपने बताया एक इम्यूनो डेफिशिएंसी, बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल ही की वजह से ही हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यूनिटी है. तो उन वाली बीमारियों में भी ट्रांसप्लांट से क्योर किया जा सकता है. उनको हम एक लेबल देते हैं दैट इज प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, जिसमें कि स्किड जो आपने
આવ્યો વયો ગયો પાછો બંધ થઈ ગઈ એટલે મ્યુટ કરાવ્યું હશે તો અવાજ આવશે હવે આવશે ને પાછો બોલશે તો આવશે ને એમ હા તારામ નથી બોલતા ને હું થતો ભાઈ જો ને નવી દવાની વાત કરી સાંભળો તું ગોગા કુટીનો બીજું શું જોવાય એમ નહીં એને નવી દવાની વાત કરી ખબર છે ને ઇન્જેક્શન ની આવે તમારો ગાળો લંબાઈ જાય એટલે મળશે દવાનું જાણી લે દવાનું Hello. આ બતા હેલ મને Hello. Hello. I think you can begin, sir. Okay. So, am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay. The So, participants are sorry. almost. I think sorry, it was some network issues. So, No, sir. The issue is from our side. You can continue now. Almost okay, all so participants are rejoined. I was just talking about white blood cell disorders and definitely high risk leukemias and primary immunodeficiency disease and also some storage disorders also. There are indications for doing allogenic bone marrow transplant. Beside this, a common problem which we see in our country is a severe aplastic anemia where bone marrow will be dry. So more than 90% of the patients can be completely cured after allogenic bone marrow transplant in this disease. इसके अलावा pediatric solid tumors में भी autologous bone marrow transplant का role है, especially high risk neuroblastoma and high risk Ewing's sarcoma. And also relapsed Hodgkin's lymphoma or non-Hodgkin's lymphoma, there is indication. So most of the cancers in children who are high risk, they are curable by this modality. So I'll end this. Yeah. Any more questions, please? Anything? Oh yes, wasn't that hero? Dr. Jay? Yes, sir. Yeah, you are back. सॉरी थोड़ा टेक्निकल इशू। यस सर, मुझे ये बताइए अगर ये टेस्ट में तो पता चलता है कि थैलेसीमिया, लेकिन थैलेसीमिया माइनर कैसे डिटेक्ट करें, कैरियर स्टेज कैसे डिटेक्ट करें, और शादी के पहले जो है ब्राइड एंड ग्रूम दोनों का टेस्ट करके ये डिसीज अवॉइड किया जा सकता है क्या थैलेसीमिया? यस सर, बिल्कुल। थैलेसीमिया माइनर और ट्रेट एक ही बात है।
इसको सिंपल हम कंप्लीट ब्लड काउंट, या जैसे कि जो ब्लड का टेस्ट होता है सिंपल कंप्लीट ब्लड काउंट से हम पता कर सकते हैं कि किसी को थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। उसमें हम देखते हैं कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे कि क्लू मिलता है, यस डेफिनेटली ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं है, ये थैलेसीमिया माइनर है। फॉर पीडियाट्रिशियंस आई विल टेल हियर कि दोनों में द पेरिफेरल ब्लड पिक्चर विल बी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, लेकिन यदि हम टोटल आरबीसी काउंट देखते हैं वो थैलेसीमिया माइनर में या तो नॉर्मल होगा या हाई होगा, जबकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में वो बिल्कुल लो होगा। ठीक है, और फिर हमें जैसे ही क्लू मिलता है यस कि आरबीसी काउंट नॉर्मल है, फिर भी पिक्चर में माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, तो डेफिनेटली सम हीमोग्लोबिनोपैथी इज देयर। सो we'll confirm it by doing further testing that nowadays it's available everywhere, hemoglobin electrophoresis HPLC, उससे कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। और यस इसका स्क्रीनिंग अगर हम प्रेगनेंसी में करते हैं तभी हमें बहुत फायदा है और हम थैलेसीमिया मेजर को प्रिवेंट होने से बचा सकते हैं, क्योंकि यदि मदर की प्रेगनेंसी में स्क्रीनिंग में हम देखते हैं कि थैलेसीमिया माइनर है तो हस्बैंड का भी स्क्रीनिंग करना चाहिए। यदि हस्बैंड इज नॉर्मल नॉट अफेक्टेड देन विदाउट एनी प्रॉब्लम दे कैन कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी। लेकिन यही सिनेरियो में मदर इज आल्सो माइनर एंड फादर इज आल्सो माइनर थैलेसीमिया, देन there is 25% chance that the child will have the major thalassemia, but yes still 75% chance will be there that the child will be either normal or minor. So then सर ये जो है आप जो बता रहे हैं कि इसमें मदर पे कौन सा टेस्ट, सपोज मदर इज प्रेग्नेंट एंड शी इज माइनर एंड द हस्बैंड इज आल्सो माइनर, सो देयर इज 20% चांस दैट द चाइल्ड कैन गेट द थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो मदर में ये मैंने सुना है कि क्या टेस्ट है, कोरोनिक बायोप्सी या एम्नियोसेंटेसिस, ये टेस्ट करके वो कब करनी चाहिए, वो कितनी सेफ है, और वो करके ये डिटेक्ट हो सकता है क्या ये बच्चे को थैलेसीमिया मेजर डिसीज है ऐसे? यस सर, सबसे पहले तो हमें प्रेगनेंसी में स्क्रीनिंग में देखना है कि दोनों माइनर हैं, तो फिर हमें उन दोनों का सबसे पहले जेनेटिक म्यूटेशन एनालिसिस करना है, मदर का भी फादर का भी, कि कौन सा जीन म्यूटेटेड है, कौन से डीएनए में डिफेक्ट है। फिर वही हम जब बच्चा प्रेगनेंसी में जब 12 वीक्स है तो एमनियोसेंटेसिस और या उससे पहले कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग से हम देख सकते हैं कि हाँ वो दोनों डिफेक्ट जो डीएनए के जो एक मदर में है और एक जो फादर में है वो उस बच्चे में है या नहीं है। यदि दोनों डिफेक्ट उस बच्चे में है तो डेफिनेटली दे हैव टू थिंक अबाउट कंटिन्यूएशन ऑफ दिस प्रेगनेंसी। राइट। So genetic testing needs to be done before the planning of the pregnancy ideally. Okay. तो ये सर ये बताइए कि ये एक तो हो गया कि ठीक है डिटेक्ट हो गया, बच्चा भी थैलेसीमिया मेजर है पता चल गया, तो उसको रिकरेंटली जैसे मोहिते सर ने बताया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट है नॉन डिपेंडेंट है। सपोज मोहिते सर बच्चा ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट हो गया, राइट, दैट रिक्वायर्ड एवरी 2 to 3 वीक्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम दे रहे हैं तो उसमें और कुछ बहुत दिनों शायद हो गया 5-6 साल हो गया, बेबी रोज ब्लड उसको हर महीना ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, तो कुछ उसको अलग ट्रीटमेंट की टेस्ट का जरूरत है या कुछ और? एक उसमें कहना जाता है कि आयरन की लेवल बहुत बढ़ जाती है और अलग अलग बीमारी भी हो सकती है, हार्ट लीवर की ऐसी कुछ, तो और कुछ चिलेशन का कुछ गोली इंजेक्शन लगता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इंजेक्शन लगती थी, अभी कुछ तो टैबलेट भी अवेलेबल है ऐसे सुना ही दिया है, तो आप दोनों उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, बताइए उसके बारे में। जैसे ही जनरली एक बार थैलेसीमिया मेजर डिटेक्ट होता है तो पहली बात है जो उसको पेरेंट्स को सब बीमारी समझा के देना, आगे क्या क्या हो सकता है, कभी कभी क्या करना है समझा के देना। उसमें जैसे कि एज अ परमानेंट क्योर डॉक्टर विपिन ने बताया आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज अ परमानेंट क्योर, जो हम लोग आमतौर पे 10 साल के अंदर ही करो ऐसा उनको सलाह देते हैं, बट अर्लियर द बेटर। लेकिन उसके लिए दूसरा बेबी है नहीं, कंपैटिबल है नहीं, ये सब इश्यूज आते हैं। लेकिन जब तक बच्चा हमारा सिर्फ ट्रांसफ्यूजन पे जिंदा रहता है, और ये ट्रांसफ्यूजन जैसे ही अराउंड 8 to 10 ट्रांसफ्यूजन होते हैं तो हमारा कलेक्टिव आयन लेवल हर एक ब्लड पैक सेल के साथ कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट हीम मतलब आयन बॉडी में डिपॉजिट होता है, जो एक ऐसी चीज है जो बहुत स्लोली बॉडी से निकल जाती है। सो सरप्लस अमाउंट है जो बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है और उसके टॉक्सिक इफेक्ट काफी ज्यादा है।
अगर सही ढंग से हम लोग कंट्रोल में नहीं रखते तो उसका असर लिवर के ऊपर, उसका ऊपर आगे जाके हार्ट के ऊपर, अलग अलग बीमारी बोन मैरो के ऊपर हर जगह पे हो सकता है। इसलिए आइडियली जैसे हमारे 10 या 12 ट्रांसफ्यूजन हो जाते हैं, आमतौर पे पहले 1 सवा 1.5 साल में हो जाता है, तो उसके बाद उसके टॉक्सिक असर आने के पहले ही हम लोग प्रिवेंटिव मोडालिटी करते हैं, मतलब ये आयन निकल जाना चाहिए। तो पहले वो आयन कौन से लेवल पे आए तो निकल जाता है। तो आमतौर पे 1000 फेरेटिन लेवल हम लोग चेक करते हैं बच्चे का। जब भी बच्चा ट्रांसफ्यूजन को आता है तो बिफोर ट्रांसफ्यूजन हम लोग उसका एक फेरेटिन, प्लाज्मा फेरेटिन लेवल चेक करते हैं। वो 1000 के ऊपर आता है तो दिस इज राइट टाइम टू गिव। डॉक्टर विपिन मुझे करेक्ट करेंगे इसके बारे में अगर कुछ मैं गलत कहता हूँ तो, बट आमतौर पे हम लोग अराउंड 10 ट्रांसफ्यूजन होने के बाद भी पीरियोडिकली फेरेटिन मॉनिटर चालू करते हैं और वो हर 6 महीने बाद आगे हम लोग करते रहते हैं। तो जैसे लेवल 1000 से आगे जाता है तो उनको हम आयन चिलेटर्स चालू कर देते पहले जमाने में। और आज की तारीख में भी बेस्ट इज टू गिव कंटिन्यूअस आयन चिलेशन जो इंजेक्शन के उनके तौर पे देते हैं, बट लेकिन वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है। तो जिधर पॉसिबल है वो फाइन ट्यूनिंग के लिए वो ठीक है, अदरवाइज ओरल आयन चिलेटर आज की तारीख में काफी अच्छे मिल रहे हैं विथ लेसर काइंड ऑफ साइड इफेक्ट मिल रहे हैं। उनका कंपैटिबिलिटी, उसका कंप्लायंस लेवल अच्छा रहता है, पेरेंट्स बहुत कंफर्टेबली दे सकते हैं। और उसके लिए भी जैसे कि आपने बताया चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है जो उसके लिए भी काफी अच्छी सपोर्ट करती है। तो अगर वो मिल जाता है तो ऑलवेज बेटर है। मुझे लगता है इसके बारे में डॉक्टर विपिन हमको और ज्यादा डिटेल में जानकारी दे। आयन चिलेशन जो हम आमतौर पे 1.5-2 साल के बाद में चालू कर देते हैं और वो आगे जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता जब तक कंटिन्यूअस देना पड़ता है। अगर ट्रांसप्लांट कर ही नहीं पाते तो लाइफ लॉन्ग हो जाता है वो, जिसकी वजह से आयन का बॉडी का टॉक्सिक लेवल आगे जाके जो लीवर हार्ट फेल होने के चांसेस है या इवन ग्रोथ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंडोक्राइनल डिपोजिशन, तो किसी बच्चे को डायबिटीज होना, किसी बच्चे का ग्रोथ फेलियर हो जाना, इवन उनका सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये सब के ऊपर असर करता है। तो वो टालने के लिए ये चिलेटर्स देके आयन निकाल देना जरूरी है। मुझे लगता है वो चिलेटर्स के बारे में डॉक्टर विपिन हमको और ज्यादा डिटेल बताएंगे। थैंक यू डॉक्टर मोहिते सर ने बिल्कुल सही बताया कि किसी भी बच्चे को यदि 10 से 12 ट्रांसफ्यूजन मिल जाते हैं तो डेफिनेटली हमें उस वक्त उसको आयरन किलेशन चालू करना है। पहले 80s 90s में हमारे पास केवल एक इंजेक्टेबल आयरन किलेटर था जिसको कि हम बोलते हैं डेफेरॉक्सामिन, जो कि इंजेक्टेबल सबक्यूटेनियसली दिया जाता था 10 से 12 घंटे या लगातार कंटिन्यूअसली इन्फ्यूजन पंप के द्वारा और डेली। तो यस उसमें कंप्लायंस की बहुत प्रॉब्लम रहती थी और डेस्फेराल के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते थे। उनमें हमें उनका हियरिंग और विजन और ये रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता था। लेकिन यस साइंस ने प्रोग्रेस करी, वैसे वैसे आयरन किलेटर्स भी न्यू आते गए। फिर उसके बाद डेफरीप्रॉन, जिसको कि हम बोलते हैं कैल्फर, उसका कैप्सूल अभी भी थैलेसीमिया सोसाइटी में ही मिलता है। वहां पे that was the first oral iron chelator। लेकिन इसका हमने जो एक सीरियस साइड इफेक्ट देखा वो था कि एग्रेनुलोसाइटोसिस, मतलब कि आपका बोन मैरो बिल्कुल व्हाइट ब्लड सेल बिल्कुल सूख गए हैं। सो दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम रिलेटेड विद दिस आयरन किलेटर। फिर लेटेस्ट अभी आजकल जो डेफेरासिरॉक्स करके एक दवाई आती है जो कि सेफ है, हाईली एफिकेशियस भी है। बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, असुनरा, डेफ्रीजेट एंड एक एक्सेड जो पहले आता था। तो इसके काफी सारे ब्रांड, डेसिरॉक्स, ये अवेलेबल हैं और ये सेफ है। इसको सुबह मॉर्निंग में खाली पेट पानी में घोल के दिया जाता है, तभी इसका ज्यादा इफेक्ट आता है। और मैं एंड में यही बताना चाहूंगा कि कोई सा भी आयरन किलेटर यूज करें, definitely डेफेरासिरॉक्स is the better one, but yes compliance is the most important thing। यदि बच्चा रेगुलरली ट्रांसफ्यूजन पे है और आप आयरन किलेटर्स टाइमली देते हैं तो बच्चों की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल बच्चों से रहती है। तो विपिन जी सही कहा कि ब्लड ट्रांसफर के 10-12 ब्लड ट्रांसफर होने के बाद में आयरन जो चिलेटर टैबलेट्स है या इंजेक्शन है वो भी शुरू करना बहुत बहुत जरूरी है। ये भी एक चीज बताइए कि किसी बच्चे ने कहा ठीक है बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के लिए टाइम है, तो क्या और चीजें मॉनिटर करनी चाहिए? कि मैंने सुना है कि वो बेबी कुछ तो हार्ट फेलियर हो सकता है, उसको डायबिटीज हो सकती है, उसका थायराइड लेवल कम ज्यादा हो सकता है,
तो ये टेस्ट कितना करना जरूरी है और कितने फ्रीक्वेंसी में वो करना, मॉनिटरिंग बोलते हैं कि उसका हाउ टू शुड मॉनिटर दिस अदर फैक्टर्स आल्सो इन द चाइल्ड। सर ये इसके लिए वैसे डॉक्टर मोहिते ने सब कुछ इसके बारे में बताया, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कोई भी बच्चा जब आयरन किलेटर्स पे होता है तो एक तो हमें आयरन किलेटर्स की क्या क्या टॉक्सिसिटी होती है उसके लिए उसको रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। और यस, थैलेसीमिया की वजह से जो ट्रांसफ्यूजन होते हैं जिसकी वजह से आयरन डिपॉजिट होता है उसके लिए भी हमें मॉनिटर करना होता है। तो सबसे पहले हम जो कॉमनली डेफेरा सिरोक्स देते हैं उसके लिए हमें एवरी 3 मंथली बच्चे का लीवर फंक्शन में बिलिरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी और किडनी में क्रिएटिनिन मॉनिटर किया जाता है रेगुलरली। 3-3 महीने में ये करना होता है और साथ के साथ उसका सीरम फेरेटिन भी देखा जाता है कि हाँ कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है उस दवाई से, क्योंकि इस दवाई की एक वाइड रेंज डोज होती है, 20 to 40 mg पर kg पर डे तक हम दे सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन फेरेटिन लेवल्स हमें उस डोज को बढ़ाना होता है। इसके साथ साथ हमें बच्चे की ग्रोथ के लिए भी मॉनिटर करना पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि आयरन कम कर दिया, लेकिन साथ के साथ हमें बच्चे के हाइट, वेट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइमली उनको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की भी मदद चाहिए होती है। तो ये सब चीजें जैसे जैसे टाइमली फॉलोअप में बच्चा आता है वैसे वैसे उनको बताया जाता है और इन सब दिस इज कॉल्ड एज होलिस्टिक केयर ऑफ द चाइल्ड। तो ये सब चीजें हमें मॉनिटर करनी होती है। आजकल हार्ट के लिए पहले इको से ही एक इकोकार्डियोग्राफी से ही मॉनिटरिंग की जाती थी, लेकिन T2 स्टार MRI देखा गया है कि वो हार्ट के आयरन को सबसे अच्छा बता पाता है फेरेटिन जो ब्लड है उसके मुकाबले। तो T2 स्टार MRI सब जगह अवेलेबल नहीं हो पाता और सब जगह हर लोग उसको करवा नहीं पाते, लेकिन आइडियली 8 साल के ऊपर बच्चे का एक बार कार्डियक MRI होता है तो वो बहुत अच्छी बात है। 12 साल पे या उससे पहले भी बच्चे का थायराइड प्रोफाइल, कैल्शियम फॉस्फेट, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, शुगर लेवल, ये सारी चीजें मॉनिटर की जाती है। और हाँ, बोन डेंसिटी एक डेक्सा स्कैन वो भी 10 साल के बाद किया जाता है, क्योंकि थैलेसीमिया में आपने देखा होगा कि बोन डिफॉर्मिटीज काफी होती है, तो उसको हम कंट्रोल में इन दवाइयों से टाइमली हम दें, कैल्शियम सप्लीमेंट, विटामिन डी सप्लीमेंट और यस हार्मोन सप्लीमेंट ऑल्सो, उन सब से इन चीजों को कंट्रोल में लाया जा सकता है। विपिन सर, तो हमने काफी चीजें अभी डिस्कस की, जैसे मैंने बताया कि इसका जो ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोग भारत में है जो कैरियर है थैलेसीमिया ट्रेट, और ऑलमोस्ट 10 से 12 हजार बच्चे जन्म लेते हैं इंडिया में जो इसको थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। एंड तो ये प्रिवेंट करने के लिए हम खुद का टेस्ट करें, देखें कि हम थैलेसीमिया ट्रेट कैरियर है, एज हम खुद का करें, अपने बच्चों का करें, अगर शादी हो रही तो उसका भी करें और केयर करें। और अगर गलती से निकलता है कि ट्रेट, तो शादी के पहले प्री नेटल डायग्नोसिस बोलते हैं कि बच्चा डिलीवर होने के पहले माँ के पेट के अंदर बच्चे की कोरोनिक बैग से एमनियोसेंटेसिस करें। अगर बच्चा थैलेसीमिया डिटेक्ट होता है तो इट कैन बी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर 2, 3, 4 हफ्ते में देना जरूरी है, या उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ऐसे 2 टाइप रह सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन अवेलेबल है, फ्री कॉस्ट भी होता है, और रेगुलरली अगर चलती है तो चिलेशन टैबलेट लेना है। द मोस्ट आइडियल ट्रीटमेंट इज, अगर सपोज है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज द मोस्ट आइडियल ट्रीटमेंट है। तो मैं कहना चाहूँ कि ये आज का जो कार्यक्रम है ये अवेयरनेस के लिए, नॉट फॉर द पेडिशन, आई कैन से फॉर द जनरल पीपल। सो अगेन अवेयरनेस है, इसलिए बहुत मेडिकल डिटेल में हम बाद में जाएंगे, कभी तो पेडिशन जब करेंगे। तो आई थैंक बोथ ऑफ यू, VP sir, for short notice, because I got a call from very short notice from our IB president की जय सर करायचा है। So मैं बोला थोड़ा हम लोग ज्यादा बिजी नहीं है, तो मतलब छोड़ो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आज ही करना है। एंड आई एम नॉट गॉट डॉक्टर महेश मोहिते, उनको तो मैं रोज ही मिलता हूँ मॉर्निंग में, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि मोहिते सर का फोन है, अरे मेरा पोस्टर दिख रहा है वहां पे, उस पे तो मुझे फोन भी नहीं आया एक्चुअली, और अजय कोड़ी जी भूल गए थे आप उनको फोन करना, बट इज नेवर आई ऑलवेज रेडी फॉर एनी एकेडमिक सेशन, सपोज इज फ्री। एंड अभी ऐसा हुआ कि इतने वेबिनार होते तो 9 बजे वेबिनार शुरू होता है तो हमारा डिनर होता है, तो डिनर अच्छा नहीं लगता है। तो आई थैंक बोथ ऑफ यू, दोनों का धन्यवाद है।
और काफी लोग ज्वाइन भी हुए हैं। तो मैं कहूंगा कि थैलेसीमिया, यस, आवर एम ऑब्जेक्टिव चाहिए कि नॉट ए सिंगल चाइल्ड शुड बॉर्न विद द थैलेसीमिया डिसीज। सो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि जब सीबीसी करें तो उसमें मेंटल इंडेक्स जरूर देखें और वो भी डायग्नोज करें कि यस योर थैलेसीमिया ट्रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी सिंपल, गूगल करें कि हम बहुत बार भूल जाते हैं कि ठीक है इसका 9.5-10 है हीमोग्लोबिन, तो हम आयन देके देखें, लेकिन ये देखना भी बहुत जरूरी है। सो कोई अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जरूर वीडियो ऑन करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आई विल से थैंक यू IIP Raigad for taking this very important awareness session, and thank you Neha, thank you Vikas, Ajay, विशाल राउत। दो थोड़ा हमारा टेक्निकल इशू थोड़ा आया तो 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए। तो कुछ टेक होम मैसेज आप दोनों देना चाहते तो जरूर दे सकते हैं, देन अदरवाइज विल वाइंड अप टुडेस मीटिंग। थैंक यू वेरी मच। सर आपने बिल्कुल बताया है सब कुछ। आई थिंक अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि जिस हिसाब से इंसिडेंस है थैलेसीमिया माइनर का, like 3 to 5% आपने बताया, 5 crore population of Indian continent, you can say Indian country is affected by thalassemia minor, and every year even after so much awareness 10,000 babies are born with thalassemia major। और यदि हम देखें कि at a time almost 1 lakh patients को regular transfusion मिलता है इंडिया में। So we should do every effort to prevent this disease, and yes, अगर किसी को हो भी गया तो cure is also available, so don't worry, everyone is there to help। जो भी यहाँ पे families हैं उनको हम यही बोलना चाहेंगे कि ये बीमारी प्रिवेंटेबल है और क्योरेबल भी है। मेरी तरफ से एक ही बोलना चाहता हूँ मैं कि अभी उन्होंने अपनी जो स्टैटिस्टिक दिया, सो दैट सेज दैट इंडिया का 4% पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4%, सो आउट ऑफ 100 crore 4 crore आर कैरियर्स। तो जो आपने बताया ऑटोसोमल रिसेसिव, मदर कैरियर, फादर कैरियर, और रिश्ते में हम लोग पूछते हैं रिश्ते में मैरिज हुआ है क्या, लेकिन इसका कैरियर स्टेट इतना ज्यादा है कि रिश्ते में मैरिज होने की जरूरत ही नहीं है। अभी साथ ही साथ हम लोग ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज हमारे इधर अग्री कोरी कम्युनिटी वो ज्यादा प्रिविलेज, मराठा अग्री कोरी, तो अपार्ट फ्रॉम कच्ची, मराठी, लोहाना एंड सिंधी, अग्री कोरी एंड मराठा, और हमारे एरिया में ये पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। लेकिन साथ ही साथ एक एनकरेजिंग चीज हम देखते हैं, उल्लासनगर में सिंधी पॉपुलेशन एक जमाने में बहुत बड़ा पॉपुलेशन था उधर थैलेसीमिया मेजर का, लेकिन उन्होंने अपने कम्युनिटी लेवल पे एक डिसीजन लिया कि हर एक मैरिज के पहले लड़का और लड़के का कैरियर स्टेट चेक किया जाए। अगर वो पॉजिटिव है तो पहला उनको ऑप्शन दिया जाए कि टाल सकते हैं, नहीं करते तो इवन पहले बच्चे के टाइम में उनका पूरा स्क्रीनिंग कर ले। और आज की तारीख में उनके इधर थैलेसीमिया का रेट ड्रास्टिकली कम हो गया है। और ये शायद हम लोग हमारे रायगढ़ में कर सकते हैं कि जब भी कोई मैरिज डिसीजन होता है तो उनकी पत्रिका ना ज्वाइन करे या मैच करे, उनका पहला कैरियर स्टेट चेक करे थैलेसीमिया के लिए। अगर कैरियर दोनों पॉजिटिव है तो या तो अगर वो टाल सकते हैं तो टाले, नहीं कर सकते हैं तो डेफिनेटली एटलीस्ट पहले बच्चे से लेके उन लोग जेनेटिक टेस्टिंग, आजकल वो इवन आप पहले जेनेटिक टेस्टिंग से कंफर्म कर सकते हैं और बाद में पर HPLC और सब बाकी की बात होती है। सो मुझे लगता है कि प्रिवेंशन ऑफ थैलेसीमिया इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ थैलेसीमिया, क्योंकि व्हाटएवर इज सेड एंड डन, जैसे आपने और विपिन सर ने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट सक्सेस रेट इज 95%, इवन आज की तारीख में हैप्लो आइडेंटिकल का सक्सेस रेट भी 65 हो गया, कुछ दिन के बाद वो भी 80-90% हो जाएगा, बट दैट कम्स विद अ कॉस्ट। कितना भी फिलांथ्रोपी हो उसका अल्टीमेट कॉस्ट आगे का मैनेजमेंट गोज टू 20-25 लाख रुपए, तो इट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। तो मुझे लगता है कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो हमारे एरिया में हम लोग सब पेरेंट्स को रेकमेंड करें मैरिज के बाद में, बिफोर हैविंग और बिफोर मैरिज और इवन आफ्टर मैरिज, बिफोर हैविंग फर्स्ट चाइल्ड, check the HbA1c status, especially those who are lingering with borderline hemoglobin, mothers coming with 8, 9, 10 hemoglobin, उनको सिर्फ आयन ना दे। जब ये हीमोग्लोबिन बढ़ता नहीं है तो पहले उसका HbA1c करा लीजिए। whenever you have got A2 level more than 2 or 3%, be alert, you may be dealing with a carrier state, in that case do उनका लड़के का भी कैरियर स्टेट चेक करे, दोनों अगर पॉजिटिव है तो टेक द प्रिवेंटिव स्टेट, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। ओके, so I got the good message from both of you. So Neha, are you there?
क्यों अजय, प्लीज गिव द वोट ऑफ थैंक्स. आवाज, अजय आवाज येत नाहीये. नाही येत, आवाज येत नाहीये. आता तूच देऊन टाक. ओके, सो आप दोनों का बहुत ही धन्यवाद, मोहिते सर एंड विपिन सर, फॉर I can your involvement in the academics as well as the Raigad IIP activities, and hope so it will not occur next time. You will get a proper message. So thank you very much. Good night, and thank you again Neha and Vishal for the technical support. धन्यवाद अजय, परत भेटूयात. Thank Good you. night. Thank you. Thank you very much.